اب خبرنامے کی اہم سرخیاں۔ خواتین کو کینسر جیسے مہلک مرض سے محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری۔ خواتین مکمل معلومات حاصل کریں اور وقت پر تشخیص کروائے۔ ضلع کلکٹر یوگیتا رانا۔ ریاستی حکومت کا بجٹ عوام کے لیے اطمینان بخش اور عوام کے حق میں، اقلیتوں کے لیے ترقیات پر مبنی بجٹ۔ عوامی نمائندے و پارٹی قائدین۔ کسی بھی سامان کی خریدی پر پکی رسید حاصل کریں۔ ملاوٹی اشیاء کی روک کے لیے عوام خود آگے آئیں اور قوانین کا استعمال کریں۔ شعور بیداری پروگرام سے ججوں کا خطاب۔ معمولی تنازع دو زندگیوں کو اور دو خاندانوں کو الگ کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ شرعی پنچایت سے رجوع ہو، ازواجی زندگی کی تلخیوں کو دور کریں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اپریل میں لگائے جا رہے گروپ 2 کے امتحانات مضبوطی کے ساتھ لگائے جائے۔ ضلع کلکٹر ڈاکٹر یوگیتا رانا کا بیان۔ 35,000 طلباء اس امتحان میں شرکت کر رہے ہیں۔ شہر کے پرگتی بھون میں گروپ 2 امتحانات کے انتظامات پر TSPSC سے آئے ممبران وویک کے ساتھ ریونیو و تعلیمی اداروں کے عہدیداروں اور نمائندوں سے ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر کلکٹر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً 35,000 طلباء شرکت کرنے والے امتحان کو اپریل 24-25 تاریخوں میں 2 اوقات میں لیا جا رہا ہے۔ تقریباً اس امتحانات کے لیے 101 سینٹروں کو لگائے جانے کا خیال کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد لگائے جا رہے ان امتحانات کو کافی مضبوطی سے لگائے جانے کے لیے اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ حساس امتحانی سینٹروں کے پہلے ہی شناخت کرتے ہوئے ضروریاتی طور پر CC کیمروں کو نصب کیا جائے گا یا پھر میڈیا کوریج کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ రెండోది లా అండ్ ఆర్డర్ అక్కడ ప్రిజర్వ్ చేయాలి. ఇంకా ఆ చీటింగ్ కానీ ఏదైనా మ్యాల్ ప్రాక్టీసెస్ అక్కడ ఉండకూడదు. దానికి ఒక సెపరేట్ ఒక ప్రణాళిక ఉండాలి. సో వాటికి సంబంధించిన ఈరోజు ఇక్కడ డిస్కషన్ నడుస్తుంది. కొన్ని పాయింట్స్ ఆల్రెడీ మెంబర్ గారు మీతో మాట్లాడారు. దాని మీద మీ ఐ థింక్ యూ ఆర్ టేకింగ్ దేర్ రెస్పాన్సెస్ అండ్ రియాక్షన్స్। بے روزگار کافی تیاریوں کے ساتھ محنت و لگن سے اس امتحان کی تیاریاں کر رہے ہیں اور اس پر کافی امیدیں لگائے ہوئے ہیں اور ان امتحانوں کو پرسکون ماحول میں لگائے جانے کا سوچ بچار کیا جا رہا ہے۔ سب ڈویژنوں کے سینٹروں و آرمور میں ہی لگائے جانے کے لیے سینٹروں کی شناخت کرتے ہوئے ان میں سہولیات کے بارے میں دیکھے جانے کا اظہار کیا۔ TSPSC ممبر وویک نے کہا کہ امیدواروں کے سہولیات کے لیے پینے کا پانی، بینچوں اور روشنی ہوئے سینٹروں کا ہی جائزہ لیا جائے اور روٹ میپ کو لگائے جانے اور پبلک سروس کمیشن کے قواعد و ضابطوں کے مطابق امتحانی سینٹروں کو لگائے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ ایکسائز پولیس اپنی خدمات کو ایمانداری کے ساتھ انجام دے۔ ایکسائز سپرنٹینڈنٹ گنگا رام کا بیان۔ حکومت کے احکامات پر ملاوٹی سیندی، گڑمبا اور دیسی دارو کی روک تھام کے لیے اپنی انتھک کوشش کیے جانے کا مشورہ دیا۔ شہر کے سبھاش نگر کے ایکسائز سپرنٹینڈنٹ آفس میں 2014 ایکسائز پولیس کو اپنی خدمات کے بارے میں و ریفریشنگ ٹریننگ کلاسوں کو ایکسائز سپرنٹینڈنٹ گنگا رام کے تحت لگایا گیا۔ جرائم کی روک تھام، جرائم کے بارے میں معلومات کس طرح لیا جائے اظہار کیا۔ ملاوٹی سیندی، گڑمبا و دیسی شراب کی کس طرح جانچ کی جائے معلومات دی۔ زہریلی دواؤں کی جانچ کس طرح کی جائے بتایا گیا۔ حکومت گڑمبے و دیسی شراب پر آہنی قدم اٹھا رہی ہے۔ حکومت کے احکامات پر ہر ایک ایکسائز پولیس اپنی خدمات کو اچھی طرح انجام دیے جانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں انفورسمنٹ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ لکشمن، نظام آباد اسسٹنٹ ایکسائز سپرنٹینڈنٹ مہیش، CI صادق علی نے شرکت کی۔ بہبودی اسکیمات کے لیے TRS حکومت بجٹ میں زیادہ اہمیت دی۔ جکل MLA ہنمنت شنڈے کا بیان۔ ریاست منصوبہ بندی کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ مدنور منڈل مستقل کے کستوربا گاندھی اسکول کو 12 لاکھ کی لاگت سے تعمیر کیے جا رہے سرحدی دیوار کا MLA ہنمنت شنڈے نے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ TRS حکومت کے اقتدار میں جکل حلقہ ترقیات پر گامزن ہو رہا ہے۔
हल्के की तरक्यात के लिए करोड़ों रुपयों के फंड्स की मंजूरी दी जा रही है और तमाम देहातों में पीने के पानी, सड़कों की तामीरात लाजमी तौर पर करवाए जाने का इजहार किया। అభివృద్ధి మరోపక్క సంక్షేమ కార్యక్రమాలు గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు సాగునీటి రంగానికి ఈ బడ్జెట్లో 25,000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని ఏ విధంగా సమర్థవంతంగా సాగు చేసే విధంగా వారు ప్రోత్సాహం ఇస్తున్నారో ఇదొక నిదర్శనం. గ్రామీణ స్థాయిలో రోడ్ల అభివృద్ధి కోసం కూడా దాదాపు 10,000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది. जिले में इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात पुरसुकून तौर पर इख्तिताम हुए। RIO इंदिरा किरण रेड्डी का बयान, इम्तिहानात में किसी भी तरह की नकल नवेसी नहीं की गई और काफ़ी मजबूती के साथ इम्तिहानात लिए गए। ज़िले में इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात पुरसुकून तौर पर हुए। जुमला 70 इम्तिहानी सेंटरों को लगाते हुए किसी भी जगह बदउनवानियां न होने दिया गया। इस साल GPRS निगरानी के अलावा पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाया गया। 144 सेक्शन लगाते हुए इम्तिहानात को मजबूती के साथ अंजाम दिए जाने का RIO इंदिरा किरण रेड्डी ने इजहार किया। नकल नवेसी न होने देते हुए जिला कलेक्टर के अहकामात पर कड़ी निगाह रखी गई, जिससे इस साल नकल नवेसी असल में अंजाम नहीं हो पाई और निगरानी रखने पर भी नकल नवेसी किए 29 तलबा को डिबार किए जाने का इजहार किया। इस मौके पर तलबा ने बात करते हुए कहा कि इम्तिहानात अच्छी तरह अंजाम हुए और पेपर्स आसान होने से अच्छे मार्क्स के अलावा रैंक्स हासिल करने की उम्मीद जाहिर की। नकल नवेसी न होने देते हुए ओहदेदार इक़दामात लिए जाने से मेहनत व लगन से तालीम हासिल किए, इन्हें फ़वाइद मिलने का इजहार किया। माजी की हुकूमतों ने अभी तक इस तरह के बजट को पेश नहीं किया। मनसूबाबंदी खर्च के लिए भारी फंड सिर्फ TRS हुकूमत में ही पहली बार देखा जा रहा है। MLC भूपति रेड्डी का बयान, तमाम सैगों को मसावी दर्जा दिए जाने का सहरा वज़ीर आला KCR के सर ही आता है। शहर के R&B गेस्ट हाउस में TRS MLC भूपति रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाए। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासती बजट मुल्क भर के दिगर रियासतों के लिए मिसाली साबित हो रहा है। रियासती बजट सुनहरा तेलंगाना की अक्कासी कर रहा है। अभी तक किसी भी हुकूमत ने इस तरह के कामों को अंजाम नहीं दिया और ऐसे काम वज़ीर आला KCR करके दिखाए जाने का इजहार किया और तमाम सैगों के लिए भारी फंड्स की मंजूरी दिए जाने पर MLC भूपति रेड्डी ने वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया और इस इजलास में पार्टी पोलिट ब्यूरो मेंबर AS पोशेट्टी व दीगर ने शिरकत की। देहातों और वार्डों में अवाम को पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े, इस बात पर हर एक सरकारी मुलाजिमीन खास ध्यान दें और हुकूमत की जानिब से अवाम की सहूलतों के लिए खास इक़दामात लिए जा रहे हैं। बांसवाड़ा हल्का जो कि एक मेजर ग्राम पंचायत की हैसियत रखता है। ग्राम पंचायत में सरपंच, वार्ड मेंबर्स, रेवेन्यू महकमे के ओहदेदारान और IKP ओहदेदारान का अहम इजलास अमल में लाया गया, जिसमें तमाम ही वार्ड्स में पानी की सरबराही व दिगर अहम बातों पर मालूमात हासिल करते हुए रिपोर्ट पेश की गई। ओहदेदारान ने बात करते हुए बताया कि अवाम को पानी की किल्लत से महफूज रखने के लिए मनसूबा तैयार किया गया और अशद पानी की किल्लत वाले इलाकों की निशानदही की जाएगी और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए ठोस इक़दामात लेते हुए पानी के टैंकर्स और दिगर आर्जी ज़राए के ज़रिए पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के इक़दामात का इजहार किया। बांसवाड़ा शहर में जो भी वाटर की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक प्लान बनाने के लिए कहे हैं, तो उसके हिसाब से हम सब वार्ड मेंबर को बुलाकर और उनके वाटरमैन्स को बुलाकर हम और रेवेन्यू सिब्बंदी और जो भी पंचायत सिब्बंदी है वो जो मिलके प्लान बना रहे हैं कि यहाँ पर कितने सिंगल मोटर फेस के मोटर्स है। मरकजी हुकूमत तलाई जेवरात पर 1% एक्साइज ड्यूटी में इजाफा करने पर एहतजाज करते हुए सोने के ताजरान ने हड़ताल लगाई। हुकूमत इस एक्साइज ड्यूटी को मनसूख किए जाने तक गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल जारी रखते हुए एहतजाजी मुजाहरा किए जाने का इंतबाह दिया। शहर के सोने के ताजरान मरकजी हुकूमत की जानिब से लगाए गए 1% एक्साइज ड्यूटी को मनसूख करवाने के लिए गुज़िश्ता 14 दिनों से अपनी तलाई जेवरात की दुकानों को बंद करते हुए हड़ताल कर रहे हैं।
कुमार गली के सोने के ताजरान संगम के तहत हड़ताल लगाते हुए गैर मुय्यना मुद्दत हड़ताल का आगाज किए एक्साइज टैक्सों को मंसूख किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का सोने के ताजरान संगम सेक्रेटरी गोविंद चारी ने इजहार किया। इसी तरह जिला सरफराज सदर अब्दुल खुद्दूस के तहत सोने के ताजरान ने मरकजी वजीर अरुण जेटली का अलामती पुतला नजरियातिश किया। मरकजी हुकूमत एक्साइज ड्यूटी को मंसूख किए जाने तक एहतजाजी मुजाहिरा जारी रखने का एसोसिएशन सदर फ्लोर लीडर खुद्दूस ने इंतबा दिया। भारत में जो है सो गोल्ड एसोसिएशन की तरफ से गोल्ड मार्केट पूरे दुकाना और जो है सो गोल्ड का काम करने वाले कारीगर सब बंद हैं। सराफा एसोसिएशन निजामाबाद की तरफ से 14 दिन से हमारे भी कारीगर हमारे भी दुकानें सब बंद हैं। हमारा गवर्नमेंट से हमारा डिमांड है सराफा एसोसिएशन की तरफ से ये जो एक्साइज ड्यूटी लगाए हैं 1% और पैन कार्ड का जो लुज़ुम लगाए हैं या ग्राहक के ऊपर वो सब जो है सो बर्खास्त कर दें, इसको रद्द कर दें। तालीमी मैदान में तरक्की ही किसी भी तबके को तरक्की की राह पर लाने के लिए अहम साबित होती है। मुस्लिम तबके की तालीम पर खास तवज्जो दी गई और वज़ीर आला की क़यादत में जो बजट पेश किया गया वो मिसाली और तरक्की पर मबनी बजट है। शहर के खलीलवाड़ी में वाक़ टीआरएस पार्टी दफ्तर पर टीआरएस खदावर कायद तारिक अंसारी की जानिब से रियासती हुकूमत की बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बात करते हुए इन्होंने बताया कि वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में टीआरएस ने जो 2016-17 का बजट पेश किया वो मिसाली और तरक्की दिलाने वाला बजट है। इन्होंने वज़ीर आला को हकीकी सेकुलर बताते हुए कहा कि मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के लिए इस तरह तालीमी मैदान और रोज़गार के मौके फराहम करना इस बात का सबूत है। इन्होंने वज़ीर आला को हकीकी सेकुलर बताते हुए कहा कि मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के लिए इस तरह तालीमी मैदान और रोज़गार के मौके फराहम करना इसका सबूत है और मुत्तहिदा रियासत में जितना बजट अक़लियतों के लिए मुख्तस किया जाता है उससे कई गुना ज़्यादा बजट सिर्फ तेलंगाना रियासत के मुसलमानों की तरक्की के लिए मुख्तस किया गया और इसके लिए इन्होंने रियासती वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। हुकूमतों ने किसी ने तारीख़ गवाह है कि पिछले हुकूमतों ने किसी ने ये तारीख़ ऐसा बजट कभी पेश नहीं किया गया और यकीनन ये बहुत बेमिसाल बजट है और हर तबके को जो है न मद्देनज़र रखते हुए ये बजट पेश किया गया और बिलखुसूसी अक़लियतों की जो है तालीमी पसमानदगी को नज़र रखते हुए ये बजट तालीमी जो है कई ऐसी चीज़ें जो है ऐलान किया गया मुसलमानों के लिए, जैसे 70 अंग्रेज़ी मीडियम की जो है रेसिडेंस स्कूल्स के लिए कई करोड़ रुपए बजट दिया गया और आने वाले साल में जो है यकीनन वो जो स्कूल जो है उसकी स्कूलों पे जो है अमलवारी हो जाएंगी। कई ऐसी चीज़ें और बिल्कुल शादी मुबारक स्कीम जो पिछले इंतहा पसंदी मुआशरे और ख़ुद इसका शिकार होने वाले के लिए मुहल्लिक और मुज़िर साबित होती है और इंतहा पसंदी किसी मसले का हल ख़तई नहीं। इंतहा पसंदी के खिलाफ एसआईओ की मुहिम और एसआईओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के प्रेस क्लब में एसआईओ की जानिब से सहाफ़ती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बात करते हुए एसआईओ ज़िम्मेदारान ने बताया कि तुलबा में तालीमी सोच को परवान चढ़ाने और तुलबा को तरक्की की राह पर लाने के लिए इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खिलाफ एसआईओ हफ्तावारी मुहिम का आगाज़ कर रही है, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए तुलबा में तालीमी सोच को बढ़ाने और इंतहा पसंदी के मुज़िर असरात और इंतहा पसंदी किसी मसले का हल नहीं, इस बात को तुलबा के जहनों में पैवस्त करने की कोशिश की जाएगी। तुलबा से इस्तेफादा की ख्वाहिश जाहिर की। मनाई जा रही है। इस मुहिम का मकसद तलबा नौजवानों के अंदर इंतहा पसंदी को दूर करना है। एसआईओ तलबा नौजवानों के अंदर तामीरी सोच को परवान चढ़ाना चाहती है। इसी मकसद के तहत इस मुहिम को छेड़ा है। एसआईओ तलबा नौजवानों के अंदर तामीरी सोच को परवान चढ़ाते हुए मुल्क का एक मेमार बनाना चाहती है और अल्लाह ताला कुरान शौहर बीवी में मामूली बातों पर पैदा होने वाले तनाज़े अक्सर मुनासिब रहनुमाई और दीन की कमी की वजह तलाक और खला जैसी संगीन सूरतें इख्तियार करते जा रहे हैं। इसके हल के लिए शरई पंचायत की खिदमत हासिल है, लेकिन बहुत ही कम लोग इससे रुजू होते हैं। बदलते ज़माने के साथ साथ जहां बहुत सी बातों में तब्दीली आई, वहीं हमारे सोचने के तरीक़े और हमारे तौर तरीक़ों पर भी इसका असर नज़र आया
और आजकल घरेलू झगड़े या फिर शौहर बीवी में पैदा होने वाले तनाज़े जो बाज़ औक़ात बहुत ही मामूली बातों पर शुरू होते हैं, अक्सर सही रहनुमाई ना होने के सबब नताइज संगीन सामने आ रहे हैं। इन बातों पर ख़ास तवज्जो देते हुए शहर में बोधन रोड पर शराई पंचायत भी कायम की गई, लेकिन अक्सर फ़रीक़ैन इससे रुजू होने के बजाय पुलिस स्टेशन का सहारा लेते हैं। अदालत और ज़िला इंतज़ामिया भी ऐसे वाक़यात को हल करने के लिए काउंसलिंग को ही तरजीह दे रहे हैं, लेकिन हम मामला वहाँ ले जाने के बजाय उल्मा से रुजू हो तो दीन की सही मालूमात से हमारे मसले बआसानी हल हो सकते हैं। देहातों में पानी की सख्त किल्लत होने पर भी ओहदेदार लापरवाही जता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जताई बरहमी। तमाम देहातों का दौरा करते हुए पानी की किल्लत के जगहों की शनाख्त की गई। बोधन के अलावा कोटगिर मंडल के हंगिरगा गांव में पीने के पानी के मसले की मालूमात के लिए कांग्रेस पार्टी जिला सदर ताहिर बिन हमदान, असेंबली इंचार्ज बालराजू और कांग्रेस कायदीन ने दौरा किया। गांव के तमाम कॉलोनियों में फिरते हुए पीने के पानी के मसले के बारे में अवाम से आगाही ली। हंगिरगा गांव में सख्त पानी की किल्लत दिखाई देने पर ओहदेदारों से फरियाद करने पर भी लापरवाही जताने की अवाम ने बात बताई। एक तरफ कलेक्टर पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए ओहदेदारों को अहकाम दिए जाने और दूसरी तरफ ओहदेदार लापरवाही जताते दिखाई देने पर कलेक्टर इक़दाम लिए जाने का मुतालबा किया। ज़िले के 3 सब डिवीज़नों में फैले पानी की किल्लत के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करते हुए ज़िला कलेक्टर को दिए जाने का इजहार किया। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। क्यों दें हम अपने जिस्मानी आज़ा का अतिया, 7 कदम की दूरी पर आपका एक फैसला। नंबर 1, आपका अतिया किया हुआ दिल एक और इंसान को सांसें देगा, जीने की वजह बनेगा। नंबर 2, आपकी आँखें और 2 इंसानों की अंधेरी दुनिया को रोशन करेगी। नंबर 3, आपका अतिया किया हुआ जिगर 3 इंसानों को नई जिंदगी देगा। नंबर 4, आपका अतिया करदा जिगर और गुर्दे 4 इंसानों के लिए जिंदगी देने की वजह बनेंगे। नंबर 5 साल की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद डॉक्टर्स की टीम ने अतिया करदा इंसानी आज़ा से इंसानों की ज़िंदगी को महफूज करने की नींव डाली। नंबर 6, मौत के 6 घंटे बाद आपकी अतिया की हुई आँखें फिर से किसी और के जरिए दुनिया देख पाएंगी। नंबर 7, 70 साला ज़ईफ़ हो कि 1 साला मासूम। इंसानी आज़ा के अतिये के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। जी हाँ, मौत के बाद अगर दफना दिया जाए तो जिस्म मिट्टी बन जाता है, लेकिन अगर आप जिस्मानी आज़ा का अतिया देंगे तो दूसरों के काम आ सकते हैं। तो आइए हाथ से हाथ मिलाएं। इस माह की 21 तारीख बरोज़ पीर बमुकाम श्राविया गार्डन फंक्शन हॉल, आरमूर रोड, निज़ामाबाद, रोशनी टीवी के तहत मुनअक़िद होने वाले प्रोग्राम इंसानी उज़्व का अतिया रुकनियत साजी में भरपूर हिस्सा लें और दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ और मसरतें लाएं। वक्फे के बाद आपका दोबारा सा इस्तकबाल है। कैंसर मर्ज में किसी एक शख्स की भी मौत होनी नहीं चाहिए। तमाम तशख़ीस करवाते हुए इलाज की सहूलियत दी जाए। ज़िला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा का बयान।
शहर के जिला सरकारी मेडिकल कॉलेज में तिब्बी महकमा और जच्चा बच्चा बहबूदी महकमा IKP अहदेदारों से बच्चादानी में कैंसर की तस्दीक और छाती के कैंसर के बारे में मालूमात दिए जाने के लिए जिला कलेक्टर योगिता राणा कन्वर्जेंस इजलास मुनक्किद किए। कैंसर की तशखीस ना होने और मालूमात ना होने और वक्त पर शनाख्त ना करने और तिब्बी इलाज ना किए जाने से कई माएँ कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर फौत हो रही है। ज़िले में 30 से 60 साल के बीच की उम्र की ख़वातीन 4 लाख से भी ज़्यादा होने की शुरू में ही शनाख्त की गई और उम्र हुए हर एक खातून को मालूमात दिए जाने का मशवरा दिया। हर एक ख़वातीन की स्कैनिंग करवाई जाए और बई आपसी जांच हार्ट आने पर फ़ौरन इलाज के लिए मुंतकिल किए जाने के अहकाम दिए। इस प्रोग्राम पर हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझते हुए किसी भी ख़ानदान में यतीम को ना बनाया जाए। इस मौके पर इन्होंने अपने 2 सहेलियों को याद करते हुए जज्बाती हुए, वो भी कैंसर मर्ज में मुब्तला होकर फौत हो जाने की याद करते हुए इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इस प्रोग्राम में HJC राजाराम, DMNHO वेंकट, ICDS PD मीरा बनर्जी, कॉलेज प्रिंसिपल इंदिरा ने शिरकत की। కొన్ని వీక్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే కొన్ని నెలలు ఉండొచ్చు, కొన్ని సంవత్సరం ఉండొచ్చు. చాలా మటుకి we hide from the patient. కానీ till how long can we hide from the patient? మీకు క్యాన్సర్ ఉంది, మీరు ఇప్పుడు చచ్చిపోతారండి, ఇది మీరు చెప్పలేదు. కానీ చాలాసారి అంటే how I am about to share with you because I lost my father to lung cancer. నాకు అదే మీతో మాట్లాడితే నాకు అదే గుర్తుకి వచ్చింది. సో జస్ట్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఇన్ఫాక్ట్ ఒక 10 years ముందు we never used to hear any death because of cancer. इम्तिहानात दे रहे 10वीं जमात के तुलबा किसी भी दबाव व जहनी उलझनों में मुब्तला ना हो और अपने जहनों को पुरसुकून रखते हुए इम्तिहानात दें। शहर के नामदेवाड़ा में वाक़ रिवाजी संगम हाई स्कूल में रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद सदस्य श्रीनिवास राव के तहत 10वीं जमात के तुलबा के लिए मालूमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर विशाल ने शिरकत की और कहा कि इम्तिहानात के औकात में तुलबा अपने मसाइल को दूर ही रखें और सिर्फ इम्तिहानात पर ही तवज्जो दें, जहनी उलझनों में मुब्तला ना हो, तभी इम्तिहानात काफ़ी बेहतरीन लिख सकेंगे और अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए अपनी कोशिश करें और तालीम को एक बोझ समझते हुए हरगिज़ पढ़ाई ना करें और वालिदैन भी अपने बच्चों पर दबाव ना डालें। दबाव में पढ़ने वाले तुलबा के जहनों पर दबाव पड़ने के इम्कानात हैं, इसीलिए इन्हें पूरी तरह छूट दिए जाने का इजहार किया। इसके बाद तुलबा में इम्तिहानाती अशिया की तक़सीमात की गई। अवाम खुद मिलावटी अशिया के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें, तभी मिलावटी अशिया पर लगाम कसी जा सकती है। सामान की खरीदी के बाद पक्की रसीद ज़रूर हासिल करें ताकि मिलावटी अशिया पर मुकदमा दायर किया जा सके। नेशनल लोक अदालत के परमानेंट चेयरमैन नूरुल्लाह कौरी का बयान। शहर के अदालत के अहाते में आलमी यौम सारफीन के खुसूस में अदालती अमला और कस्टमर चार्ज महकमे के अहदेदारान की जानिब से शौर बेदारी प्रोग्राम अमल में लाया गया, जिसमें नेशनल लोक अदालत के परमानेंट चेयरमैन नूरुल्लाह गौरी और सीनियर सिविल जज हरीनाथ ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और अहम मालूमात दी। इन्होंने बताया कि अवाम किसी भी सामान की खरीदी पर पक्की रसीद बिल ज़रूर हासिल करें, ये सार्फिन का हक़ है और अशिया में मिलावट का शुबा होने पर केस दर्ज किया जा सकता है और इस कानून का निफाज 1986 से है। अवाम खुद शौर बेदारी का सबूत दें, तभी मिलावट से पाक समाज की तश्कील मुमकिन है और फूड इंस्पेक्टर की अदम तवज्जो मिलावटी अशिया की फ़रोख्त से अवाम को अमराज में मुब्तला होना पड़ता है। अवाम इस बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। धूप की शिद्दत में इजाफा हो जाने से रियासती हुकूमत पहले ही इक़दाम लिए और आधे दिनों के स्कूल्स के लिए अहकाम जारी किए। ज़िले में दर्जे हरारत 40 डिग्री में पहुँच गई। इतनी गर्मी इससे कबल कभी नहीं देखी गई। सूरज अपना जलवा दिखाने से तुलबा के वालिदैन घबराहट में मुब्तला हो रहे हैं। इस बात की मालूमात पर हुकूमत आधे दिन ही स्कूल चलाने का फैसला लेते हुए फ़ौरन अहकाम जारी किए। फ़िलहाल इंटर इम्तिहानात लेने पर
आइंदा 6 दिनों में 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़ हो रहा है। ऐसे औकात में धूप की गर्मी से बचने के लिए हुकूमत स्कूलों के औकात को तब्दील की। इस माह की 15 तारीख से अप्रैल की 24 तारीख तक आधे दिन के स्कूल ही चलाए जाएंगे। ज़िले में 2272 सरकारी स्कूल्स हैं। इनमें से हाई स्कूल 433, प्राइमरी स्कूल 275 और अपर प्राइमरी स्कूल 1564 है। तकरीबन 1,80,000 तलबा सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम है। प्राइवेट स्कूल जुमला 852 और इनमें 3 लाख तलबा ज़ेर तालीम है और प्राइवेट स्कूल जुमला 852 है और इनमें 3 लाख तलबा ज़ेर तालीम है। इस औकात में आधे दिनों के स्कूल्स को अच्छी तरह चलाए जाने और लापरवाही जताने पर सख्त इक़दाम लेने का तालीमी महकमे ने अहकाम जारी किए, जिससे स्कूलों से गैर हाजिर होने वाले असातिज़ीन को ये बात हज़म नहीं हो रही है। सुबह 7:30 बजे ही स्कूल्स लगाए जाने के अहकाम दिए जाने से काफ़ी मजबूरी के साथ स्कूलों पर शिरकत कर रहे हैं। बकाया अदा न करने से गेस्ट हाउस पर ताला लगा दिया गया। 3 सालों से अवामी नुमाइंदे आला ओहदेदारान अपनी मेहरबानी ना दिखाने से इमारत गैर अनासिर कामों का अड्डा बनकर रह गई। पेश है रिपोर्ट। मदनूर मंडल मुस्तकिर के R&B गेस्ट हाउस की इमारत गुज़िश्ता 3-4 सालों से शराब नोशों का अड्डा बनकर रह गई। बरक़ी बिल 30,000 रुपये और पीने का पानी का बिल अदा ना किए जाने और दूसरी तरफ अवामी नुमाइंदे व ओहदेदार इस जानिब ना देखने से गैर अनासिर कामों का अड्डा बनकर रह गई और इस जानिब से गुजरने वालों के लिए पेशाब खाने और खंजीरों का अड्डा बनकर रह गया। रात के औकात गैर अनासिर काम भी अंजाम दिए जा रहे हैं। इतने साल गुजर जाने पर भी इस इमारत को इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है और इस बारे में ना तो R&B ओहदेदार ही ख्याल कर रहे हैं और ना ही आला ओहदेदारान अपनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। फिलहाल मंडल में कोई भी वजीर या MLA या अवामी नुमाइंदे और आला ओहदेदारान शिरकत करने पर इन्हें मार्केट कमेटी के गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है, मगर R&B गेस्ट हाउस की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा जा रहा है। R&B गेस्ट हाउस को तमाम सहूलियात से आरास्ता करते हुए इस्तेमाल में लाए जाने की अवाम ख्वाहिश जाहिर कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी भारत की जय ना कहने पर इन्हें मुल्क बदर किया जाए। बीजेपी जिला सदर पल्ले गंगा रेड्डी का बयान। शहर के बीजेपी ऑफिस में लगाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला सदर पल्ले गंगा रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि इस माह की 17 तारीख को जिला मुस्तकिर में मरकजी खादों व दवाओं के वजीर अंसर राजू गंगाराम शिरकत कर रहे हैं। 17 तारीख को सुबह 9 बजे धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत लगाए जा रहे 3 वाटर टैंकर्स का आगाज करेंगे। इसके बाद बीजेपी ऑफिस पर शिरकत करेंगे। इसके बाद मुनर कापूर संगम प्रगति नगर में नई तश्कील जिला कमेटी की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करके जिला इजलास में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी के अल्फाजों की मजम्मत करते हुए इन पर इक़दाम लिए जाने का मुतालबा किया। आम तरफ में खलल डाल रहे हफ्तावारी बाजार से अवाम को राहत मिली। 4 दहाइयों से चलाए जा रहे हफ्तावारी बाजार को दूसरी जगह तब्दील करने से मसला हल हुआ। नवी पेट मंडल के बिनोला गांव में गुज़िश्ता 40 सालों से चलाए जा रहे हफ्तावारी बाजार को दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। बाजार की जगह को तब्दील करने के लिए गांव के हुक्मरान आगे आए और जगह को मुंतखब किए तमानियत रोजगार मजदूरों से इस जगह की सफाई करवाते हुए मुहर्रम डाला गया। कुशादा जगह में बाजार का सरपंच व ग्राम पंचायत मेंबरान ने आगाज किया। हफ्ता सुबह से लेकर शाम तक लगाई जा रही बाजार में हो रही दुश्वारियों को दूर करते हुए अवाम को सहूलियत दिलवाने के लिए ही नए हफ्तावारी बाजार को लगाया गया है, जिस पर अवाम ने अपनी मसरत दिखाई। एक नज़र व्हाट्सएप न्यूज़ पर। आरमोर मंडल निगाम के SC कॉलोनी में ड्रेनेजों की हालत बदतर है। छोटे बच्चे व ज़ईफ अशखास इन नालियों को अबूर करने के लिए सख्त दुश्वारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ग्राम पंचायत अहदेदारों से फरियाद करने पर भी लापरवाही जता रहे हैं। शहर के 31वें डिवीज़न हाशमी कॉलोनी में गंदे पानी की नालियां जमा होकर रह गई, जिससे बदबू और ताफून फैल गया। म्युनिसिपल मुलाजिमीन दिलचस्पी न लेने से मच्छरों में कसीर इजाफा हुआ। आरमोर मंडल मुस्तकिर के हनुमान गली में ऑटो वाले कैपेसिटी से भी ज्यादा मुसाफिरीन को ले जाते हुए इनकी जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं।
मोरतार मंडल मुसखर के भगत सिंह कॉलोनी में पीने के पानी की सहूलियत नहीं है, जिससे अवाम सख्त दुश्वारियों में मुब्तला हो रहे हैं। फौरन नौज़ार इक़दाम लिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। भीमगल मंडल के भोई गले में पानी की सख्त किल्लत पैदा हुई। ग्राम पंचायत मुलाजमीन टैंकर भिजवाने के लिए भी लापरवाही जता रहे हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। खवातीन को कैंसर जैसे मुहलिक मर्ज से महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी। खवातीन मुकम्मल मालूमात हासिल करें और वक्त पर तशखीस करवाए। जिला कलेक्टर योगिता राणा। रियासती हुकूमत का बजट अवाम के लिए इत्मीनान बख्श और अवाम के हक में अक़लियतों के लिए तरक्यात पर मबनी बजट। अवामी नुमाइंदे व पार्टी कायदीन। किसी भी सामान की खरीदी पर पक्की रसीद हासिल करें। मिलावटी अशिया की रोक के लिए अवाम खुद आगे आएं और क़वानीन का इस्तेमाल करें। शौर बेदारी प्रोग्राम से जजों का खिताब। मामूली तनाज़ा दो जिंदगियों को और दो खानदानों को अलग करने की वजह बनते हैं। शरई पंचायत से रुजू हो, अज़वाजी जिंदगी की तलखियों को दूर करें। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। ते इजाज़त, खुदा हाफिज़।